Hi guys, I'm back with another lecture of macroeconomics, and in this lecture we'll continue with the instruments of monetary policy. So before we start, just a brief introduction about myself. So I'm Sandhya Rao, working as an assistant professor at St. Andrews Institute of Technology and Management, and we are covering the fourth unit of macroeconomics, and so far we have covered the measures of money supply, in which we discussed the four measures M1, M2, M3 and M4. So just a quick recap of that, and then we continue with the instruments of monetary policy. So M1 and M2 were considered to be narrow money, and M3 and M4 were considered to be broad money. Narrow money basically means which is more liquid in nature, and broad money which is slightly less liquid, okay? Wherein M1 consists of the highly liquid money supply, which includes the currency which is in paper form or coin form. Then we have demand deposits with the commercial banks, and then other deposits with RBI. Then M2 is nothing but just the same as M1, except for one thing, that it includes the savings which are being deposited with the post office. And the reason why we take post office saving account as slightly less liquid, because they don't have the check facility with them. Then we have M3. In that we have M1 plus time deposits of bank. Now time deposits do not have this option of taking out the money as and when we feel like. They have a fixed maturity period. Similarly, M4 is M3 plus total savings with the post office banks excluding NSC. Okay, so this was just a quick recap, and now let's move on to the next topic. Yeah, so this is the next topic, that's instruments of monetary policy. See, we have different kinds of instruments by which the government tries to control the money supply. Okay? If they feel that there is excess of money in the economy, they will follow a contractionary policy using these instruments. And if they feel that there is very less money supply, and they need to inject something in the economy to boost the economy, to spur the growth, then in that case they will follow the expansionary policy using these instruments. So we have classified these instruments into two categories, quantitative and qualitative. Okay. And monetary policy is basically a tool by which the RBI tries to regulate the supply of money. So let's get started. So as I've told you that we have two types, quantitative instruments and qualitative instruments. Quantitative as in where we try to directly target all the banks at a point of time. ये इंस्ट्रूमेंट सारे बैंक्स को इक्वली अफेक्ट करते हैं, एक साथ अफेक्ट करते हैं. Whereas qualitative is like जब आप किसी पर्टिकुलर बैंक को परसुएड कर रहे हैं या एक इनडायरेक्ट वे में आप उनको कन्वे करना चाहते हैं कि कैसे चीजों को कंट्रोल करा जाए, then that is qualitative instrument. ठीक है? So we'll start with quantitative first. So we have a bank rate, CRR, which is cash reserve ratio, then SLR, which is statutory liquidity ratio, then we have open market operations. So these four are the quantitative instruments. So let's do a recall: bank rate, CRR, SLR, and open market operations. All right. And when we talk about qualitative, we have three kinds: marginal requirement, selective credit control, and moral suasion. Okay. So quantitative means when you control and adjust the total quantity or the volume of deposit created by the commercial bank. तो जब आप सारे के सारे डिपॉजिट्स को या सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करना चाहते हो एक ही साथ एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, then that in that case you will use quantitative, otherwise you will use qualitative measures. Okay, so we'll start with bank rate. सो बैंक रेट क्या होता है? सी इसको प्लीज कंफ्यूज मत होना. ये दिस इज द रेट एट विच द बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई. ओके, इट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोलेट्रल. कोई बिना सिक्योरिटी के, कोई बिना कोलेट्रल के अगर आरबीआई कोई अमाउंट जो है वो
कमर्शियल बैंक्स को देते हैं तो उस पे वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, दैट रेट इज नोन एज बैंक रेट. ओके, अब इसको कंफ्यूज मत करना. जो रेट आप पे करते हो बैंक्स को जब आप लोन लेते हो या कोई भी और विड्रॉल अगर करते हो अगर आप बैंक से, तो उस केस में अगर आप बैंक को कोई इंटरेस्ट पे करते हो वो डिफरेंट होता है. बैंक रेट इज डिफरेंट. ओके, बैंक रेट ऐसे समझो कि जो रेट बैंक पे कर रहा है अपने बड़े बैंक को. ठीक है, आरबीआई क्या है? आरबीआई इज द बैंक ऑफ ऑल बैंक. आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स इन आवर कंट्री. तो बैंक रेट क्या है? जिस रेट पे जो आपके कमर्शियल बैंक्स हुए, चाहे वो कोई भी बैंक हो, आईसीआईसीआई या फिर पीएनबी या फिर एसबीआई, एचडीएफसी, कोई भी बैंक हो, जब वो आरबीआई से पैसे लेंगे they will have to pay the bank rate. Okay, now how will the RBI try to control the money supply with this bank rate? See, in the case of expansionary policy, when the government wants to inject money in the economy, the government wants to increase the purchasing power of the public. In that case, they will try to lower down this rate. Bank rate को कम कर देंगे. अब उससे क्या होगा? It will be very easy for the commercial banks to take money from RBI. Banks को easily पैसा मिल जाएगा, RBI से कम रेट पे करना पड़ेगा. So credit will be easily available. And if the banks are getting credit easily, then they will make it easy for us also. Obviously they will reduce our interest rates also. हमारे भी जो हम अगर कोई लोन लेते हैं तो उस पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो भी अपने आप कम हो जाएगा, बिकॉज बैंक को भी आगे पेमेंट कम करनी पड़ रही है तो वो हमसे भी कम चार्ज करेंगे. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस ऑल्सो टू टेक क्रेडिट फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक. सो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, हम इजीली बैंक से लोन ले लेंगे. ठीक है, but in a reverse situation, when the government wants to follow contractionary policy, they want to take the excess money from the economy, then what will they do? They will increase the bank rate. So when the RBI is going to increase the bank rate, it will be very difficult for the commercial banks to take money. So credit won't be easily available for us also, and ultimately the purchasing power will reduce, the money supply will reduce, and equilibrium will be established. Contractionary policy जो है वो काम कर जाएंगी. ठीक है, सो एक्सपेंशनरी में बैंक रेट जो है वो कम करना है, कॉन्ट्रैक्शनरी में बैंक रेट बढ़ा देना है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस. देन नेक्स्ट इज CRR, which is cash reserve ratio. See, cash reserve ratio is the portion of deposits with the commercial bank that it has to deposit to the RBI. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो एंड डिपॉजिट 100 रुपीज इन अ बैंक. ठीक है, आपने अपने बैंक में 100 रुपए जाके जमा कर दिए. नाउ व्हाट विल द बैंक डू विद दैट 100 रुपीज? द बैंक विल कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ योर डिपॉजिट विद देमसेल्व्स एंड विल लेंड द रेस्ट टू द अदर पीपल. उस 100 रुपए में से वो कुछ पोर्शन जो है वो अपने पास रखते हैं. ठीक है, एक रिजर्व की फॉर्म में उन्होंने अलग करके रख दिया. ठीक है, लेट्स से कि उन्होंने 30 रुपीज जो है वो अलग कर दिए हैं और बाकी का जो 70 रुपीज बचा वो आगे किसी को लोन पे दे दिया. आपने डिपॉजिट किया एंड आपका पैसा किसी और को दे दिया. ठीक है, नाउ व्हाट विल द बैंक डू विद दैट 30 रुपीज? बैंक क्या करेगा उस 30 रुपीज का? द बैंक विल डिपॉजिट अ पोर्शन ऑफ इट टू द आरबीआई and will keep a portion of it with himself. वो उस 30 रुपीज में से फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज जो है वो अपने पास रख लेगा और बाकी का 10 रुपीज जो है वो आरबीआई के साथ रिजर्व रखेगा. ठीक है, नाउ व्हाई डज द बैंक डू इट दिस वे? बैंक क्यों करता है ऐसा? द रीजन इज दैट दे हैव टू इंश्योर लिक्विडिटी. ठीक है, बैंक को लिक्विडिटी इंश्योर करनी पड़ती है so that just in case in future the customers turn up and they ask for their money, the bank will have something to give to them. अगर बैंक पूरा पैसा जो है वो अगर किसी और को दे देंगे, what will the bank have? अगर कल को आप बैंक चले जाओ और बोलो कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, what will the bank do in that case? तो बैंक जो है वो इसीलिए थोड़ा सा अमाउंट जो है वो रिजर्व कर रखता है. अब आप कहोगे कि फिर 100 रुपीज में से तो आपने सिर्फ 30 ही रखे तो बाकी तो कहाँ से लाके देगा बैंक? सी, ऐसे ही आपके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे ना बैंक के पास. बहुत सारे लोगों ने 100 रुपीज डिपॉजिट करे होंगे और बहुत सारे लोगों के ही उन 100 रुपीज में से बैंक ने 30 रुपीज जो है वो अपने पास रख लिए. उन 30 रुपीज में से भी 20 रुपीज ही रखे अपने पास, 10 तो उन्होंने आरबीआई के पास रख दिए. तो ऐसे 20 उनके पास कितने सारे लोगों के डिपॉजिटेड होंगे? तो वो सारे
तो एक साथ नहीं आ जाएंगे एक ही दिन पे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि जितने भी बैंक के कस्टमर्स हैं दे वुड टर्न अप ऑन वन डे टुगेदर ऑल एट अ टाइम एंड वुड से दैट वी वांट ऑल आवर मनी बैक. दैट्स अ वेरी वेग काइंड ऑफ अ सिचुएशन. ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कि शायद अराइज भी ना हो. ठीक है, तो बट फिर भी हमने रिजर्व जो है वो बना के रखते हैं कि अगर कुछ भी, जितने भी हमारे कस्टमर्स अगर आते हैं डेली बेसिस पे, जो हम एस्टिमेट करके रखते हैं कि इतने कस्टमर्स तो आ सकते हैं, उसके हिसाब से हम ये रेट जो है ये डिटरमाइन करते हैं कि कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए ताकि हम उनको रीपे कर सकें. तो ये सिर्फ उसी रीजन से रखा जाता है रिजर्व. सो दिस इज कैश रिजर्व रेशियो. ओके, बट ये वो अमाउंट है जो हम आरबीआई के साथ रख रहे हैं. ठीक है, एंड जो अमाउंट हम अपने पास रखते हैं उसको हम एसएलआर बोलते हैं. ठीक है, सो एसएलआर इज द अमाउंट दैट द कमर्शियल बैंक कीप विद देमसेल्व्स एंड सीआरआर इज द रिजर्व दे कीप विद द आरबीआई. ठीक है, अब इनको याद कैसे रखोगे? पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन देम. ठीक है, सो देखो, एसएलआर मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो. सो ये जो एसएलआर में एल आ रहा है, दिस स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी. अब लिक्विडिटी तो तभी होगी ना जब बैंक अपने पास रखेगा, तभी तो वो इजीली उनको दे सकेगा, अमाउंट को रीपे कर पाएगा. अगर वो आरबीआई के साथ अमाउंट को रख रहे हैं तो फिर बैंक को पहले आरबीआई को फोन करना पड़ेगा, देन आरबीआई विल सेंड अ पर्सन मनी के साथ, तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. तो लिक्विडिटी कहाँ रही? सो लिक्विडिटी का मतलब जो बैंक के पास है और जो दूसरा बच गया वो ऑटोमेटिकली आरबीआई के पास है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट. So SLR is the amount that the commercial bank keep with themselves and CRR is the amount that the bank keep with RBI. अब इन दोनों टूल्स को यूज कैसे करते हैं फिर आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए? सी, इफ द आरबीआई इंक्रीजेस द सीआरआर तो क्या होगा? अगर सीआरआर बढ़ गया है तो आपको ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें 10 रुपीज जो है वो आरबीआई को जा रहे थे और 20 रुपीज जो है वो हमारे पास थे. ठीक है, इफ द बैंक इंक्रीजेस द सीआरआर ऑफ टू लेट से 30 रुपीज नाउ, मतलब आपने अगर 100 रुपीज डिपॉजिट करे, उस 100 में से 30 रुपीज जो है वो आरबीआई के पास चले जाएंगे, पूरे के पूरे 30 रुपीज आरबीआई के पास. अब बचा कितना? 70 रुपीज. अब उस 70 में से कुछ तो पोर्शन आपको एसएलआर भी रखना पड़ेगा, अपने पास भी रखना पड़ेगा. तो आपकी अमाउंट तो बहुत कम हो गई जो आप आगे लेंड कर सकते हो. अब आपके पास मे बी शायद 50 रुपीज ही आए या मे बी 60 रुपीज ही आए. सो इससे क्या हो रहा है? मनी सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि अब आपको आगे फर्दर एक्सटेंड करने के लिए, फर्दर लेंड करने के लिए जो अमाउंट है वो कम हो गई है. So if the government wants to, follow the contractionary policy, want to take away the excess money from the economy, they will increase the CRR. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है तो सीआरआर बढ़ जाएगा, एंड अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो सीआरआर कम हो जाएगा. रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ज्यादा अमाउंट को लेंड कर सकते हो, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. ठीक है, सेम इज फॉर एसएलआर. if you want to increase the supply you will reduce the SLR. if you want to reduce the money supply you will increase the SLR. तो ये जो तीनों चीजें थी, बैंक रेट, सीआरआर एंड एसएलआर, ये वर्क करते हैं इनवर्स रिलेशनशिप पे, विच मीन्स कि अगर आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है तो इन रेट्स को कम कर दो, अगर आपको मनी सप्लाई कम करनी है तो इन रेट्स को बढ़ा दो. ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द काइंड ऑफ सप्लाई यू वांट टू हैव, कि इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, एंड द change in the ratios, your requirements. ठीक है, now the next quantitative tool that we have is open market operation. This is very important. This is another way in which the RBI tries to control the money supply by directly entering into the market. इसमें RBI जो है वो market में directly enter करते हैं and they buy or sell the short term securities. Short term securities को either buy करेंगे या फिर वो sell करेंगे open market में, ताकि मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करा जा सके. अब ये होता कैसे है? आरबीआई विल बाय द सिक्योरिटीज. अगर आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज बाय करते हैं, इसका मतलब वो अपने पैसे दे रहे हैं मार्केट में और सिक्योरिटीज ले रहे हैं. जब आप मार्केट में पैसा दे रहे हो तो यू आर इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई. सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो यू विल बाय द सिक्योरिटीज. और अगर आप सिक्योरिटी सेल कर रहे हो, यानी कि आप लोगों से पैसा ले रहे हो और उनको सिक्योरिटी बेच रहे हो, तो यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम द इकोनॉमी. ठीक है,
तो आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हो एंड यू विल सेल द सिक्योरिटीज. सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो बाय करो, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है तो सेल करो सिक्योरिटीज. ओके, दिस इज व्हाट ओपन मार्केट ऑपरेशन इज, व्हेन यू directly sell or purchase the securities in the open market. Okay, so this is about the quantitative instruments that we have. Now we'll talk about the qualitative instruments. So the first one is marginal requirement. The marginal requirement का मतलब होता है कि आपको कुछ ना margin रखना पड़ता है. Whenever you ask for loan, whenever you ask for some amount from somebody, you have to keep some margin. Okay. कैसे? For example, let's understand this with the help of an example. The commercial bank grants a loan of 8,000 against a security of, let's say, 10,000. Now here 2,000 is the margin, which means कि अगर for example आपने जो लोन मांगा था वो 10,000 का था, या आपने जो सिक्योरिटी जो ली है दी है वो फॉर एग्जांपल 10,000 की है, एंड आपने जो अमाउंट एक्चुअली में उनको दी है वो 8,000 है, तो ये आपने 2,000 का मार्जिन रख लिया है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये बेसिकली डिफरेंस होता है कि आपकी जो एक्चुअल सिक्योरिटी की जो वैल्यू है और जो आपने लोन दिया है उनके बीच का डिफरेंस होता है. ठीक है, सो इफ द मार्जिन इंक्रीजेस देन डेफिनेटली यू विल बी यू आर फॉलोइंग अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, कि आप जो है सिक्योरिटी ज्यादा ले रहे हैं और मनी जो सप्लाई कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं. ठीक है, लोन जो दे रहे हो वो कम दे रहे हो. सो अगर ये मार्जिन कम हो जाएगा तो आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, बिकॉज आप ज्यादा फंड्स दे रहे हो, मार्जिन कम रख रहे हो. ठीक है, बट ये जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यू यूज देम ओनली फॉर स्पेसिफिक बैंक्स और फॉर स्पेसिफिक सेक्शंस, या स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, तो ये आप स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए रखते हो. ये सारे बैंक्स के लिए नहीं होता, ये कुछ कुछ सिलेक्टिव बैंक्स के लिए होते हैं जिनको आपको लगता है कि उनको कंट्रोल करने की जरूरत है. Then next is selective credit control. Again, this method aims at the regulation of credit taken for specific purpose or branches of the economic activity. तो ये क्या होता है कि आप क्रेडिट को कंट्रोल करते हो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए या फिर स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए. ठीक है, तो इट एनकरेजेस गुड क्रेडिट एंड डिस्करेजेस बैड क्रेडिट. जैसे स्पेक्युलेटिव क्रेडिट जो होता है, जो लोग स्पेकुलेट करते हैं कि हम प्रॉफिट कमा लेंगे, स्पेकुलेट करेंगे, जो लोग बेटिंग वगैरह करते हैं, तो उस तरह की प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है कि इन स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई भी क्रेडिट लिया जा रहा है तो उसको डिस्करेज कर दिया जाए, या उसके लिए जो रेट्स हैं वो ज्यादा हाई कर दिए जाएं. तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग आर कमिंग अंडर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम मार्जिन फॉर लेंडिंग अगेंस्ट स्पेसिफिक सिक्योरिटी. अगर कोई भी स्पेसिफिक टाइप की सिक्योरिटी अगर है तो उसके लिए आपने फिक्स कर दिया कि इतना मार्जिन जो है वो होना ही चाहिए. या फिर कोई और आपने किसी पर्पस के लिए अगर कोई लोन दिया जा रहा है तो उस पर आपने सीलिंग सेट कर दी है कि इससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा इस चीज के लिए, देन दैट इज अगेन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. ठीक है, then we have moral suasion, which is informal kind of a way by which RBI try to persuade a commercial bank. वो रिटर्न में मतलब कुछ भी ऐसे ऑफिशियली कुछ नहीं होता है, वो बहुत थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, जिसमें आरबीआई जो है दे ट्राई टू परसुएड द कमर्शियल बैंक टू कंट्रोल द इकोनॉमी. तो इट इंक्लूड्स वर्बल जेस्चर्स एंड सिग्नलिंग थ्रू सेंट्रल बैंक मिनट्स. अब आप उसको या तो वर्बली मतलब बोलकर बता सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आपने उसमें थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया कि ये चीजें हो रही हैं तो हमें कंट्रोल करने की जरूरत है. सो एंड सो बैंक शुड टेक मोर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस when they are dealing with their customers. कोई फ्रॉड हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक किसी पर्टिकुलर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया, तो बैंक क्या करेगा, दे विल ट्राई टू परसुएड देम वर्बली, मॉरल सुएजन यूज करेंगे कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिवली काम करना स्टार्ट कर दें. सो दीज आर ऑल वर्बल जेस्चर्स. या फिर वो अपने जो आपकी सेंट्रल बैंक की जो मिनट्स होती है मीटिंग्स वगैरह, उनके थ्रू भी वो उनको परसुएट कर सकते हैं. It is a step which is being taken by the RBI for convincing and advising the commercial banks to adhere to the policies and act in the desired manner through interactions. So basically here we are encouraging the interaction between the commercial bank and RBI
in which they can adhere to the policies, and एक बहुत ही ज़्यादा strict होकर वो कोई instructions नहीं दे रहे होते हैं यहाँ पर. So it is slightly lenient in nature. So this is it about the qualitative instruments that we have. So I hope you have understood the lecture well. So we talked about the quantitative and qualitative instruments of monetary policy. So there are 4 instruments and there are 3 instruments of qualitative. Quantitative may we have bank rate, CRR, SLR and OMO, which is open market operation. And qualitative may we have marginal requirement, selective control and moral suasion. So if you have any doubt in this, you can ask me, and we'll be talking about that in the next lecture. So this is it for today's lecture. Thank you.